Hello, my dear student. My name is Kalpana Rawat. I'm your subject faculty. Subject name is Business Law. Today topic is Introduction to the Indian Contract Act. Let's move toward the next slide. This is your syllabus. You can see here is your syllabus and it has 5 units. Unit 1 is related to the Indian Contract Act. Contract meaning, essential, consideration, capacity. In unit 2, you will study free consent, void agreement, quasi-contract performance and discharge. In Unit 3, you will study about the Indian Partnership Act, partnership, meaning essential rights and obligation of the partner, dissolution of the partnership. In Unit 4, you will study the Indian Company Act, company formation, registration, incorporation, commencement of the business memorandum, article and prospective. In Unit 5, you will study the shares direction, meaning and winding up process. Overall, I can say that this is your subject and you get an idea exactly what is the syllabus and what are the content in it and what you will going to study in this subject, business law. Now, this is your content of today lecture. I would teach you what is exactly the meaning now, business law meaning. We would also get to know exactly what is the meaning, what is the main Indian Contract Act 1872. Now, this your subject name is business law, and definitely you should have to be get an what exactly the business law meaning. So first start with the business law meaning. Business law is basically combination of the two words business and law. So first start with the law. What is law? Law is a system of rules and principle accepted and used by the law to maintain law and order in the state. लॉ क्या है? लॉ एक सिस्टम है रूल्स एंड रेगुलेशन का, रूल्स एंड प्रिंसिपल का, कायदे और कानून का एक सिस्टम है जो सिस्टम यूज करते हैं, एक्सेप्ट करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करती है, यूज करती है अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. और ये जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ये बेसिकली रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. ये रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह का सिस्टम है जो सिस्टम कहला जाता है लॉ. तो किसी भी स्टेट में लॉ को फॉलो करना ज़रूरी होता है. लॉ को अगर आप फॉलो करोगे तो स्टेट में हार्मोनी, सेफ्टी और पीस मेंटेन रहेगा. और लॉ के कारण कई लोगों को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो लॉ को मेंटेन नहीं करते, स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते. तो लॉ क्या है? लॉ एक बेसिकली सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट इन रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करती है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ. लॉ समझ में आ गया, देन मूव टुवर्ड्स द बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ द लॉ. बिजनेस लॉ बेसिकली ब्रांच लॉ की ब्रांच है विच कंसिस्ट ऑफ लॉ रिलेटेड टू द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. लॉ रिलेटेड टू द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस लॉ. और लॉ अगर रिलेटेड बिजनेस बोल रहे हैं हम तो बिजनेस में क्या आता है? बिजनेस बेसिकली बिजनेस के पार्ट है ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. Trade means export, import, sales and purchase. Industry means where the goods manufacture. Commerce means how to deliver to the ultimate customer and how the product is reach to the ultimate customer. This is all about the commerce. Or all three ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द बिजनेस. तो जितने भी लॉ ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, दिस ऑल लॉज आर known as business law. Business law is also known as commercial and mercantile laws. इसको mercantile and commercial law भी कहा जाता है. आप कई बुक्स में देखेंगे कि बिजनेस लॉ की जगह कहीं पर आपको mercantile laws मिलेगा. So don't be confused with the word. Commercial and mercantile basically are synonyms to each other. Now moving towards the act comes under the business law. कौन कौन से एक्ट बिजनेस लॉ के अंदर आते हैं? बिजनेस लॉ के अंदर कई तरह के एक्ट्स आते हैं. तो इससे पहले मैं आपको एक्ट्स बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि स्कोप ऑफ बिजनेस का जो स्कोप होता है और जो भी बिजनेस के अंदर एक्ट आते हैं, बेसिकली इस बिजनेस का स्कोप ही उसके एक्ट्स हैं. तो बिजनेस जितने भी एक्ट उसके अंदर आएंगे वो उसका स्कोप को वेरी करेगा, उसके स्कोप को बढ़ाएगा, बिजनेस लॉ के स्कोप को बढ़ाएगा. इट मीन्स स्कोप और बिजनेस जो एक्ट्स हैं, यहाँ पर आप स्लैश करके ले सकते हैं स्कोप ऑफ द बिजनेस लॉ.
तो पहले एक चीज़ समझते हैं सबसे पहले कि बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। हम इसके एक्ट को, इसके स्कोप को पढ़ेंगे, पर हमें पता होना चाहिए बिजनेस लॉ क्यों बना जाता है। आप लोगों ने कोई ना कोई गेम ज़रूर खेला होगा लाइफ में, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और कई तरह के, खो खो, कबड्डी। आपको पता है हर एक गेम्स में कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इन अ सेम मैनर बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और ये बिजनेस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इसलिए बने होते हैं ताकि बिजनेस स्मूथ वे से रन कर सके। In order to run the business in a smooth way, these kinds of rules and regulation has been made. और these जो rules and regulation होते हैं, it not only help the business in a business matter but also हेल्प इन अ लीगल मैटर टू। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी हिंड्रेंसेस आती हैं या कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये लॉज जो होते हैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, लीगल मैटर को रिजॉल्व, लीगल मैटर में हेल्प करते हैं बिजनेस की, और कहीं ना कहीं बिजनेस की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। ये लॉज कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाते हैं, किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी और राइट्स को भी इम्प्रूव करते हैं और उसको बचाते हैं बिजनेस के। तो अब मूव टूवर्ड्स द एक्ट्स। एक्ट्स क्या क्या आते हैं? एज यू नो दैट बिजनेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, द एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजेस अंडर द बिजनेस। सो डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, जिस जिस तरह की प्रॉब्लम्स होगी उस एक्ट के थ्रू वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम एक्ट हैज बीन मेड। एक्ट के हिसाब से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से एक्ट बने हैं। मीन सपोज इफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, then the problem if the problem related to the contract, then the solution or the problem will be resolved through the act 1872. If the problem related to the goods, sales of the goods, then problem will be resolved through the Sales Act 1930. If the problem related to the partner, if the problem arises due to the partnership rights and obligation, then definitely the प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व थ्रू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसके अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, तो पार्टनर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल जाएगी, देन दे इजीली गेट आइडिया की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। इफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द negotiable instrument basically are those instruments which are used बाय द बिजनेस टू पे द पेमेंट। पेमेंट हमारा चेक में हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम्स अगर पेमेंट से रिलेटेड है, देन द ऑल द प्रॉब्लम विल बी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर एक्सप्लेन रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट आर explained under the negotiable instrument 1881। नाउ दिस एक्ट इज अमेंडेड। अमेंडेड मीन्स इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान चेंज हुए, प्रोविजन चेंज हुए, प्रोविजन चेंज हो गए। नाउ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नोन एज 2002। If the problem related to the customer protection, if the problem related to the protection of the customer, then all the problem will be resolved under the Consumer Protection Act 2002। Now moving towards the SEBI। If the problem related to the shareholder, shares, stock exchange, finance related कोई भी problem है, then all this problem will be resolved under the SEBI 1992। Now this is a IT Act. This is a new kind of a act that has comes under the business law। अगर प्रॉब्लम IT से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे आपको पता है कि एज यू नो दैट डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है और बिजनेस भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ IT। तो IT की हर कोई हिस्सा बनता जा रहा है। तो अगर प्रॉब्लम IT से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर अराइज होती है, तो ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी रियलाइज थ्रू द IT Act 2000। or there are n number of act that has come under the business law depend upon the situation that arises। उस सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट बने हुए हैं। नाउ यू कैन सी, मैंने कुछ ही मेंशन किए सो दैट यू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया व्हाट एक्ट दैट्स कम अंडर द बिजनेस लॉ। Now this is the Indian Contract Act 1872। This is your first topic in your unit 1। So this is very important, and this act will give you an idea कि what is the basis of act, basis of contract। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। As you know, there are a number of as you know that बिजनेस में जो हमारे बिजनेस होते हैं उसमें ट्रेड और ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स में
जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। वो एक तरह का एक नर्वस सिस्टम होता है जो पूरी हर चीज़ को रेगुलेट करता है। कोई भी बिजनेस में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, जो बेसिस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। कोई भी बिजनेस सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म करता है। तो सबसे मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करता है किसी भी बिजनेस में। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी है वो सब के सब ऑल आर मेंशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ दिस इज द ओरिजिनली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो एक्ट जब बना था तो कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट बातें हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। दैट इज की सबसे पहले ये है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप एक्ट है, दैट वर द पार्ट ऑफ दिस एक्ट। इनिशियली जब ये एक्ट बना था उस वक्त पे जो सेल्स ऑफ गुड्स है और पार्टनरशिप उसके जितने भी प्रोविजंस है आज कम वर कम अंडर द Indian Contract Act 1872, but later on in 1930, sales of goods were taken out from this act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स को हटा दिया गया और सेल्स ऑफ गुड्स को इंडिविजुअल एक्ट की तरह इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। In a similar manner, in 1932, the provision related to the partnership were codified and separated. The Indian Partnership Act, Individual Act were formed in 1932, which were passed in Parliament. Parliament के द्वारा इसको इंडिविजुअल एक्ट के तौर पे घोषित किया गया। और नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाट आर द प्रोविजन इन इट। बेसिकली इसमें दो तरह की प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 1 to 75 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जनरल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड इन अ सेकंड पार्ट स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन 124 से लेकर 238 के बीच में जितने भी सेक्शन मेंशन है, these all section will explain what is the special type of contract related guideline. And in a first part, general principle of contract, general principles of contract explain under the section 1 to 75. So basically Indian Contract Act में दो ही तरह की चीज़ों को explain किया हुआ है, general principles and special type of contract. Special type of contract basically means indemnity, agency and indemnity, bailment, indemnity and agency kind के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन में सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकंड पार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 के बीच में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बर्थ डेट ऑफ द दिस असाइनमेंट बेसिकली जो हमारा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब हमारा फॉर्म्ड हुआ था। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज पास्ड ऑन 25 अप्रैल 1872 एंड केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। दिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वाज पास्ड, ये एक्चुअल में एक्ट बना कब था, 25 अप्रैल 1872 में। और एक्चुअल में व्हेन इट इज इफेक्ट मीन्स होता है ये एप्लीकेशन में अप्लाइड कब हुआ बिजनेस में, इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई, 1 सितंबर 1872 में। एप्लीकेशन मीन्स इसको यूज करना हमने कब शुरू किया। Now moving towards the last slide, that is related to the what is the Indian Contract Act main object. Object of the business law of contract is to introduce the definiteness. ये definite लाता है किसी भी commercial and other transaction में, contract में। तो definite का मैथ का मतलब क्या हुआ, let take an example of a कि सबको समझ में आ जाएगा exactly what is contract. एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द 10 टन्स ऑफ आयरन ओर ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक्स नाम का व्यक्ति है वो जो एंटर हुआ 10,000 आयरन ओर को पर्टिकुलर डे में डिलीवर करने के लिए। सिंस सच कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल माना गया है कोर्ट की नज़र में। मीन्स एनफोर्सेबल मीन्स होता है कोर्ट की नज़र में लीगल माना गया है इस कॉन्ट्रैक्ट को। मीन्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाएगा। वाई नाम का व्यक्ति है जो इस 10 टन्स ऑफ आयरन ओर को लेने को रेडी है पर्टिकुलर डेट में, और वाई नाम के व्यक्ति ने इससे रिलेटेड एक्टिविटी शुरू कर दी क्योंकि उससे फिक्स डेट में एक्स नाम का व्यक्ति 10 टन्स ऑफ आयरन देगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक होता है तो जो वाई नाम का व्यक्ति है जिसने पूरी प्रोसेसिंग आयरन ओर से रिलेटेड स्टार्ट कर दी है, फिक्स डेट में उसको पता है रिसीव होने वाली है, द वाई पर्सन
विल गेट द डैमेज फ्रॉम द कोर्ट। और अगर ब्रेक हो जाता है इस कंडीशन में तो वाई पर्सन जो है उसको कोर्ट के द्वारा डैमेजेस मिलेंगे एंड विल नॉट सफर एनी काइंड ऑफ लॉस। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की ब्यूटी यही है कि अगर दोनों पार्टी एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिस एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा, लीगली ऑब्लिगेशन होंगी और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कंडीशन को फॉलो करेगा, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन इनोसेंट है, मीन्स उसकी कोई गलती नहीं है, द अदर पार्टी, जो पार्टी जिसकी कोई मिस्टेक नहीं है, अदर पार्टी को कोई भी डैमेज नहीं होगा एंड ही विल नॉट सफर एनी काइंड ऑफ लॉस। This is the reference slide, my dear student. This is the sources where I have taken my resource material for this today lecture. तो आप you can also go through this साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक्स को आप ले सकते हैं। दिस इज द बिजनेस लॉ PDF है, यू कैन ऑल्सो गूगल इट आउट। और बिजनेस लॉ से रिलेटेड एक और पब्लिकेशन हाउस है, यू कैन ऑल्सो गूगल इट आउट। दिस इज अ लिंक वेयर यू ऑल्सो गेट बिजनेस लॉ रिलेटेड मटेरियल। नाउ दिस इज द असाइनमेंट नंबर 1। हर एक वीडियो के बाद में एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगी। दिस इज असाइनमेंट, आपको शॉर्ट नोट आपको बताना है व्हाट इज बिजनेस लॉ एंड एक शॉर्ट नोट देना है आपको स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। आपको स्कोप बताना है बिजनेस लॉ का क्या है और बिजनेस लॉ का मीनिंग क्या है। प्लीज राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, डोंट कॉपी इट फ्रॉम नेट एंड अदर वे। यू कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया, आप आइडिया ले सकते हैं बट डोंट कॉपी। कुछ गाइडलाइंस है जो आपको असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई भी असाइनमेंट मेंशन करोगे उसमें आपकी हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स आप कोई एक्सेल या किसी चीज़ का या वर्ड सॉफ्ट का यूज़ नहीं करोगे, आप सिंपल अपनी हैंड राइटिंग मीन्स अपने हाथों से लिखोगे उस नोट्स को, हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, आप जब असाइनमेंट बनाओगे प्रॉपर फॉर्मेट में बनना चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट में आपका एक फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज में फॉलोइंग डिटेल्स होगी, उसमें आप लोग अपना स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। नाम लिखने के साथ अपने फादर का इनिशियल लिखेंगे। इनिशियल मीन्स पापा के नाम का पहला वर्ड्स जो है वो आपको मेंशन करना है। सेकंड, आपको क्लास मेंशन करनी है, असाइनमेंट नंबर लिखना है, असाइनमेंट नंबर 1 हो जाएगा। आपको यहाँ डेट लिखनी है 18 हो जाएगी और यहाँ पर आपको ये सबमिट, वेयर टू सबमिट, आपको ये असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है। यू विल रिसीव अ गूगल फॉर्म लिंक, आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड थ्रू दिस लिंक यू हैव टू अपलोड योर असाइनमेंट। नाउ लास्ट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आपको एक दिन पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चा ये है कि आपको जो भी असाइनमेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इसकी लास्ट डेट से पहले मुझे असाइनमेंट मिलना चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर एनी असाइनमेंट इफ आई रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक और चीज़, आपको प्लीज़ कीप योर हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट विद यू वेन एवर द लॉकडाउन और ये जी कोरोना से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी देन आई विल सबमिट योर हैंड रिटन कॉपी टू, हैंड रिटन जो आपकी हार्ड कॉपी मैं उसको सबमिट करूँगी। अदरवाइज आप मुझे इसका लिंक के थ्रू आप इसका मुझे शेयर करोगे। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे नाउ, गुड बाय।